01 deficit. घाटा, कमी, कसर, खसारा, नुकसान. 02 bust. नाकामी, नाकाम होना, दिवालिया होना है गात. 03 precisely. बिल का मुकास्त. 04 remittance. पेमेंट की एक रकम जो किसी को किसी चीज की अदायगी के लिए भेजी जाती है. तरसील ज़. रुपया जो दूर भेजा जाए, तरसील. 05 propensity. मील रुझान. 06 sustainable. पायदार. जो तवील अरसे तक जारी रह सकता है या जारी रखा जा सकता है, कुदरती मसनूआत और तवानाई का इस तरह इस्तेमाल करना जिससे माहौल को नुकसान न पहुंचे. 07 vanish. गायब होना, मदूम होना, मिट जाना. 08 prop. सहारा. टिकुन, पुष्ट, सहारा, थूनी. 09 unsustainable. गैर पायदार. नाकाबिल बर्दाश्त. जिससे सहारा मदद न दी जा सकी. 10 innovative. इजादी, इख्तिरा जदीद. 11 रिसाइकल्ड. दोबारा घूमा. 12 stellar. सितारों से जड़ा हुआ, गैर रस्मी, बेहतरीन, नजमी. कुकबी. सितारों के मुतालिक. 13 usher. नकीब. अंदर ले जाना. रहनुमाई करना. मुलाकात करने वाला, नाइब मुदर्रिस. 14 debilitating. कमजोरी लाने वाले. 15 peg. किसी चीज को खूंटे से बांधना. खूंटा. मिसमार. 16 subsidize. इमदाद देना. रुपए से मदद करना. फौजी मदद देना. 17 सर्ज. एक मजबूत एहसास का अचानक इजाफा, किसी चीज की मिकदार तादाद में अचानक इजाफा, तेजी से बढ़ना. हलकोरा. लहर. मौज. 18 devaluation. कीमत की कमी. कम कदरे. अहमियत में कमी. 19 dithered. घबराया, मुतज़ब्ज़ब. 20 advent. आमद ज़हूर. 21 conditionalities. शराइत, मशरूतियत. 22 turbo. टर्बो. टरबाइन जैसे जेट हवाई जहाज में होती है. 23 stagnant. फासिद, कायम, साकिन, सुस्त. बंद पड़ा हुआ. बेहरकत. बंद. 24 opt. मुंतखब करना, इंतखाब करना. अपनी पसंद से इख्तियार करना. मौजू होना, चुनना. 25 scuttle. कोयलेदान. 26 amnesty. मुआफी, दरगुजर. 27 relentlessly. बेदर्दी से, बेरहमी से, संदिली से, शकावत से. 28 criticism. एतराज, गिरफ्त, हफगिरी, पकड़, तनकीद. 29 parity. बराबरी, मुतवाज़त. 30 monetary. मालियाती ज़री. 31 inflation. बढ़ावा. खुद पसंदी, फैलाओ. फलवत. वरम. 32 devastated. बर्बाद, गारत. 33 depreciated. बेकदर हुआ. पसमानदा, फरसूदा. 34 optimal. बेहतरीन, पर मकसद. 35 priority. फजीलत. तकदम. तरजी. सबकत. फौकियत. अवलियत. 36 persistent. साबित कदम. मुतवातिर, पे दर पे. बाकी. मुस्तकिल. कायम मिजाज. मुस्तकिल मिजाज. साबित कदमी. डटा होना. 37 detrimental. नुकसानदेह, ज़रसान. 38 reassure. बात पक्की करना, तस्दीक करना, यकीन दिलना. 39 prevail. जीतना, कामयाब होना, तारी होना. 40 eagerly. बेताबी से, शौक से. सरगर्मी से.
चाहत से. A consistent downward slide. Miftah Ismail. Dawn Editorial. Published November 27, 2022. Meaning. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Ask anyone familiar with economic matters what is the basic problem with Pakistan's economy and they will say it's the current account deficit. And that would be the correct answer. The boom and bust cycle of our economy is precisely because we run into a current account deficit every time we try to achieve growth. The fact that we remain poor is due to our low productivity, but that's a separate discussion. Current account deficit is the difference between foreign exchange going out, imports, and foreign exchange coming in, exports plus remittances. In Pakistan's case, we have always had current account deficits, except for 3 out of 75 years, meaning that we have always had less to sell to foreigners than our propensity to consume their products. Of course, such an arrangement is not sustainable forever, and we have reached a stage where it is not. There was a time in the 1950s when Pakistan's exports were more than South Korea's and a time in the 1990s when our exports were more than Vietnam's. Today, South Korea's and Vietnam's exports are 18 times and 6 times more than Pakistan's respectively. So the story of our relative decline is both old and consistent. However, it has taken on a sharper edge in this century. The default risk won't vanish even after the December bonds are paid off. When Gen Pervez Musharraf imposed martial law in 1999, our exports were 16% of GDP. When General Sahib at long last left, our exports had decreased to 12% of GDP. In 2007 to 2008 the government kept the rupee propped up to an unsustainable value of about 60 rupees to a dollar, sold petrol at a loss, and ran the highest current account deficit in our history. We aren't particularly innovative in our policy errors. As you will see below, even our mistakes are recycled. When the new PPP government came, it had to devalue the rupee and run to the IMF. Although there wasn't much that was stellar about its governance except for the Benazir Income Support Program, the PPP should get the credit that it increased exports to 13.5% of GDP. Next came the PMLN, and whereas it did solid work in building energy and transport infrastructure and ushering in CPC, our exports declined by a debilitating 38% to only 8.5% of GDP, and we ran the second largest current account deficit in our history. Again, the issue was a currency pegged to a dollar that highly subsidized imports and made them surge even as our exports were getting priced out. We tried to make amends in the 5 months I worked as Shahid Khaqan Abbasi's finance minister through devaluation, but the solution lay in the IMF, which could only happen after a new government was formed post-elections. In the event, the incoming PTI government dithered for a while before agreeing to a new IMF program. With the advent of the coronavirus pandemic, which the PTI government handled quite well, IMF conditionalities were lifted even as loans kept coming. This allowed it to spend borrowed money without raising tax revenues. The push for unsustainable growth turbocharged our imports, and with export to GDP remaining almost stagnant, we ran into the third largest current account deficit in our history. Although in December last year, the PTI government had restarted the much-needed IMF program in February, faced with a vote of no confidence, it opted to sacrifice the national interest for political interest and scuttled the IMF program, giving unfunded subsidies for electricity and petrol, and another amnesty to business. It was this breaking of the IMF agreement that set in motion the upward trend in our default risk. When the new government came, we did what we had to do to renew the IMF program and avoid default. This obviously involved some hard choices, and I was relentlessly criticized from all sides. The main criticisms were about our letting the markets decide the rupee-dollar parity, increasing fuel prices and raising taxes. We would have been happy if the dollar had organically depreciated, but I wasn't in favor of either,
spending money or issuing administrative fiats to keep the dollar at a certain rate. I don't know what is the optimal rate of the dollar. I think only the market can determine that. Last year, our imports were $80 billion and exports only $31 billion. Surely the number one priority of the finance minister should not be to make imports cheaper and export harder, which is what an appreciated rupee does. We have been down this road before in 2007-8 and 2017-18, without any joy. A complaint that Western countries had in the 1990s was China keeping its currency depreciated to promote its exports. We, on the other hand, like to promote imports and restrict exports and remittances by keeping the rupee overvalued and then complain when we run out of dollars. Today, there is a large and persistent difference between the open market and the interbank exchange rates. This suggests that the state bank is informally guiding banks on the exchange rate. The large difference is also detrimental to our exports and remittances and is encouraging imports. The other criticisms were increasing the price of fuel and imposing new taxes. But should our government be selling petrol at a loss? Moreover, if there are 2.2 million shops in Pakistan and only 30,000 pay income tax, is it not fair to ask them to pay just 3,000 rupees per month? Today, our default risk has climbed up again and reached dangerous levels. This risk won't vanish even after the December bonds are paid off. At the risk of sounding an alarm, I have to say that we have no room left for error. Concrete measures that reassure markets and lenders are urgently needed. There comes a time when the national interest must prevail over political interest. This is that time. This government will have no right to criticize PTI or anyone else if, having eagerly decided to come in power, it is unable to do what is right for the country. The writer is a former finance minister. Published in Dawn, November 27, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu Meaning. माशी मामलात से वाकिफ किसी भी शख्स से पूछें कि पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी मसला क्या है और वो कहेंगे कि ये करंट अकाउंट खसारा है। और ये सही जवाब होगा। हमारी मईशत का बूम एंड बस्ट साइकिल बिल्कुल इस वजह से है कि जब भी हम तरक्की हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम करंट अकाउंट खसारे में चले जाते हैं। हकीकत ये है कि हम गरीब रहते हैं, हमारी कम पैदावारी की वजह से है, लेकिन ये एक अलहदा बहस है। करंट अकाउंट खसारा गैर मुल्की ज़र मुबादला के बाहर जाने, दरामदात और आने वाले गैर मुल्की ज़र मुबादला, बरामदात और तरसीलात ज़र के दरमियान फ़र्क है। पाकिस्तान के मामले में हमारे पास हमेशा करंट अकाउंट खसारे रहे हैं, सिवाय 75 में से 3 सालों के। इसका मतलब यह है कि हमारे पास गैर मुल्कियों को उनकी मसनूआत के इस्तेमाल के रुझान के मुकाबले में हमेशा कम फ़रोख्त करना पड़ा है। यकीनन इस तरह का इंतज़ाम हमेशा के लिए पायदार नहीं है और हम एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां ये नहीं है। 1950 की दहाई में एक वक्त था जब पाकिस्तान की बरामदात जनूबी कोरिया से ज़्यादा थी और 1990 की दहाई में जब हमारी बरामदात वियतनाम से ज़्यादा थी। आज जनूबी कोरिया और वियतनाम की बरामदात बिलतरतीब पाकिस्तान के मुकाबले में 18 गन्ना और 6 गन्ना ज़्यादा है। लिहाजा हमारे निस्बतन ज़वाल की कहानी पुरानी भी है और मुस्तकिल भी। ताहम इसने इस सदी में एक तेज़ किनारे पर ले लिया है। दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी पहले से तय शुदा खतरा खत्म नहीं होगा। 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो हमारी बरामदात GDP का 16% थी। आखिरकार जब जनरल साहब चले गए तो हमारी बरामदात कम होकर GDP के 12% रह गई थी। 2007-08 में हुकूमत ने रुपए को $1 के मुकाबले में तकरीबन 60 रुपए की नाकाबिल बर्दाश्त कदर तक बढ़ाया, खसारे में पेट्रोल फरोख्त किया और हमारी तारीख का सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खसारा चलाया। हम अपनी पॉलिसी की गलतियों में खास तौर पर जदीद नहीं हैं, जैसा कि आप झेल में देखेंगे, यहाँ तक कि हमारी गलतियों को भी रिसाइकल किया जाता है। जब पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत आई तो उसे रुपए की कदर में कमी करके IMF के पास भागना पड़ा।
अगरचे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा उसकी गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ शानदार नहीं था, लेकिन पी को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि इसने बरामदात को जीडीपी के 13.5% तक बढ़ाया। इसके बाद मुस्लिम लीग नून आई और उसने तवानाई और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और सी पैक के आगाज में ठोस काम किया। हमारी बरामदात 38% कमी के साथ जीडीपी के सिर्फ 8.5% रह गई और हम अपनी तारीख का दूसरा सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा चलाते रहे। एक बार फिर मसला $1 के साथ मुंसलिक करेंसी थी जिसने दरामदात को इंतहाई सब्सिडी दी और उनमें इजाफा किया, यहाँ तक कि हमारी बरामदात की कीमतों में इजाफा हो रहा था। मैंने शाहिद खाकान अब्बासी के वजीर खजाना की हैसियत से काम करने वाले 5 माह में डिवैल्यूएशन के जरिए इस्लाह करने की कोशिश की, लेकिन इसका हल IMF में है, जो इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बनने के बाद ही हो सकता है। इस सूरत में PTI की आने वाली हुकूमत ने IMF के नए प्रोग्राम पर रजामंदी जाहिर करने से पहले कुछ देर के लिए तजब्जुब का शिकार किया। कोरोना वायरस वबाई मर्ज की आमद के साथ, जिसे PTI हुकूमत ने काफी अच्छी तरह से संभाला, IMF की शराइत खत्म कर दी गई, यहाँ तक कि कर्ज आते रहे। इससे इसे टैक्स महसूलात में इजाफा किए बगैर कर्ज की रकम खर्च करने की इजाजत मिली। गैर मुस्तहकम नमू के लिए जोर ने हमारी दरामदात को टर्बो चार्ज किया और बरामद से GDP तकरीबन जमूद का शिकार रहने के साथ हम अपनी तारीख के तीसरे सबसे बड़े करंट अकाउंट खसारे में चले गए। अगरचे गुज़िश्ता साल दिसंबर में PTI हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया था, लेकिन फरवरी में अदम एतमाद के वोट का सामना करते हुए इसने सियासी मुफाद के लिए कौमी मुफाद को कुर्बान करने का इंतखाब किया और IMF के प्रोग्राम को नाकाम बना दिया। बिजली और पेट्रोल के लिए गैर माली सब्सिडी दी और कारोबार के लिए एक और एमएसटी दी। ये IMF के मुआहदे की इस खिलाफ वर्जी थी जिसने हमारे डिफॉल्ट खतरे में इजाफे के रुझान को हरकत में लाया। जब नई हुकूमत आई तो हमने वो किया जो हमें IMF प्रोग्राम की तजदीद और डिफॉल्ट से बचने के लिए करना था। इसमें वाज़े तौर पर कुछ मुश्किल इंतखाब शामिल थे और मुझे हर तरफ से मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया गया था। अहम तनकीदें मार्केटों को रुपए और डॉलर की बराबरी का फैसला करने, ईंधन की कीमतों में इजाफे और टैक्सों में इजाफे के बारे में थी। हम खुश होते अगर डॉलर की कदर में कमी वाक़ई होती, लेकिन मैं डॉलर को एक खास शरह पर रखने के लिए पैसा खर्च करने, इंतजामी फिट्स जारी करने के हक में नहीं था। मैं नहीं जानता कि डॉलर की ज्यादा से ज्यादा शरह क्या है। मेरे ख्याल में सिर्फ मार्केट ही इसका तयन कर सकती है। गुज़िश्ता साल हमारी दरामदात $80 अरब और बरामदात सिर्फ $31 अरब थी। यकीनी तौर पर वजीर खजाना की पहली तरजीह दरामदात को सस्ता और बरामदात को मुश्किल बनाना नहीं होना चाहिए, जैसा कि रुपए की कदर में इजाफा होता है। हम इससे पहले 2007-8 और 2017-18 में बगैर किसी खुशी के इस रास्ते पर चल चुके हैं। 1990 की दहाई में मगरबी ममालिक की एक शिकायत ये थी कि चीन अपनी बरामदात को फरोग देने के लिए अपनी करेंसी की कदर में कमी कर रहा है। दूसरी तरफ हम दरामदात को फरोग देना चाहते हैं और रुपए की कदर में इजाफा करके बरामदात और तरसीलात ज़र को महदूद करना चाहते हैं, और फिर जब हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं तो शिकायत करते हैं। आज ओपन मार्केट और इंटरबैंक एक्सचेंज रेट्स के दरमियान एक बड़ा और मुस्तकिल फ़र्क है। इससे पता चलता है कि स्टेट बैंक गैर रस्मी तौर पर एक्सचेंज रेट पर बैंकों की रहनुमाई कर रहा है। ये बड़ा फ़र्क हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र के लिए भी नुकसानदेह है और दरामदात की हौसला अफजाई कर रहा है। दूसरी तनकीदें ईंधन की कीमत में इजाफा और नए टैक्स आयद करना थी। लेकिन क्या हमारी हुकूमत को खसारे में पेट्रोल फरोख्त करना चाहिए? मजीद बढ़ा, अगर पाकिस्तान में 22 लाख दुकानें हैं और सिर्फ 30,000 दुकानें इनकम टैक्स अदा करती हैं, तो क्या उनसे सिर्फ 3,000 रुपये माहाना अदा करने का कहना मुनासिब नहीं? आज हमारे पहले से तयशुदा खतरा एक बार फिर चढ़ गया है और खतरनाक सतह तक पहुंच गया है। दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी ये खतरा खत्म नहीं होगा। अलार्म बजाने के खतरे पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे पास गलती के लिए कोई जगह नहीं बची है। ठोस इक़दामात जो मार्केटों और कर्ज दहिंदगान को यकीन दिलाते हैं, उनकी फौरी ज़रूरत है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब कौमी मुफाद को सियासी मुफाद पर फौकियत देनी चाहिए। ये वो वक्त है।
इस हुकूमत को पीटीआई या किसी और को तनकीद का निशाना बनाने का कोई हक नहीं होगा अगर वो इक़्तिदार में आने का फैसला करने के बाद मुल्क के लिए सही काम करने से कासिर है। मज़मून निगार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu Meaning. Like, subscribe, share and comments.